Hello students, welcome back. Today we are going to discuss the MCQs of chapter number 3 working with functions from the book Sumita Arora. Our first question is, what is the default return value for a function that does not return any value explicitly? अगर कोई फंक्शन रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से या रिटर्न कोई भी वेरिएबल या वैल्यू नहीं करता तो what does that function return? We have the four options none, int, double and null. तो इस केस में अगर मेरा फंक्शन एक्सप्लिसिटली कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो उस केस में इट रिटर्न्स द आंसर एज नन, दैट इज वो नन रिटर्न करता है. So in this case, if we see this example in Python, here I have my function def greet and here is one print statement print hello. मैंने इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं कराया और जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो हमने सिंपली कहा प्रिंट ग्रीट. तो अगर हम फंक्शन से कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं करा रहे विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे सो इट विल सिंपली शो वट एवर देर इज इन द फंक्शन बॉडी दैट इज हेलो और इस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न कराया दैट इज नन. अगर आप इस स्टेटमेंट को एक कमेंट बना दें और अगर आप अब इसके आउटपुट को चेक करें सो इट विल सिंपली गिव यू the value as none. Here it is saying expected an indented block. So since in this case there is no such statement, so something is required for the function body. So you can just write anything here like a is equal to 10. Simply it is returning you the value none because ये function हमें कुछ भी value return नहीं करा रहा है. और अगर आप सिंपली यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड भी लिख देते हैं रिटर्न एंड इसके बाद आपने कोई भी वेरिएबल वैल्यू या एक्सप्रेशन नहीं लिखा तो उस केस में जब आप इस फंक्शन को रन कराएंगे तब भी इसका आंसर आपका क्या आएगा दैट विल बी नन, राइट. आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 says which of the following items are present in the function header? That is function name only, both function name and parameter list only और return value. So in this case function header में हमारी क्या क्या items होती है. हमारे पास एक कीवर्ड होता है def, function का name होता है, the parenthesis and the colon. So in this case function header में हमारे पास function का name भी होता है और parameter list भी होती है. parenthesis में आप parameters दे सकते हैं या नहीं दे सकते, that is your choice. So we have both function name and parameter list in the function header. Third question says which of the following keyword marks the beginning of the function block? जब भी हमें किसी फंक्शन के हेडर को क्रिएट करना होता है तो किस कीवर्ड से हमें पता लगता है कि वो फंक्शन वहां पे डिफाइन किया गया है, दैट इज द कीवर्ड def. Fourth question is what is the name given to that area of memory where the system stores the parameters and the local variables of a function call? किसी भी फंक्शन के पैरामीटर्स और उसके लोकल वेरिएबल्स को हम जिस मेमोरी एरिया में स्टोर करते हैं दैट मेमोरी एरिया इज नोन एज हीप, स्टोरेज एरिया, स्टैक और एरे. दैट मेमोरी एरिया इज नोन एज स्टैक. सो द करेक्ट आंसर हियर इज स्टैक. Question number 5 says pick one of the complete statements to correctly complete the function body in the given code snippet. So in this case we have the function def f and in the parenthesis number is there. So def is my keyword, f is the name of the function and number is the parameter. After that there is missing function body और लास्ट में प्रोग्राम के मेन पार्ट में हमने फंक्शन को कॉल किया इन द प्रिंट स्टेटमेंट. तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है so that our this statement executes properly. So here we have four options: return number, number is in the double quotes, we have print number, number in the double quotes and we have return number. और हमें ये चीज़ पता है कि हम जब भी फंक्शन के अंदर काम करते हैं और हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है तो हम फंक्शन से कोई वैल्यू को रिटर्न करा सकते हैं. तो आपको यहाँ पे अगर वैल्यू चाहिए जो फंक्शन ने वापस रिटर्न करी है तो यहाँ से आपको रिटर्न स्टेटमेंट देनी पड़ेगी. अब हमारे पास यहाँ पे दो रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न नंबर एंड रिटर्न नंबर. तो इन दोनों में से हम कौन सी रिटर्न स्टेटमेंट देंगे? वी विल गिव दिस रिटर्न स्टेटमेंट. वाई? बिकॉज इफ द नंबर विल बी इन द डबल कोट्स तो हमारा सेम एज इट इज हमारी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा NUMBER नंबर.
और अगर आप यहाँ पे NUMBR नंबर सिंपल देते हैं विदाउट एनी कोड्स तो वहाँ पे आपकी क्या होगी, वैल्यू रिटर्न की जाएगी। अब जैसे यहाँ पे 5 हमने दिया तो नंबर की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो ये आपको फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 5। इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। डेफ एफ नंबर and here I have to give the name of my function is f and in the bracket I have this f. So here in this case what we have to do, यहाँ पे हमें करना है return, so हमने कहा return number। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे then you will check its output। 5 is the value which is passed to the variable number, तो इसने हमें क्या रिटर्न किया 5 रिटर्न किया और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख रहे हैं 5 इज कमिंग, तो हमने क्या मिसिंग स्टेटमेंट लिखी, रिटर्न नंबर। अगर हम इसे डबल कोट्स में लिख दें तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, दैट विल बी, लेट अस चेक दिस वंस, दैट विल बी NUMBER number। So this is the way we have to do this question, right? After this we have the next question, that is question number 6, which of the following function headers is correct। यहाँ पे आपके पास 4 फंक्शन हेडर की स्टेटमेंट्स हैं, वन इज डेफ एफ a is equal to 1 comma b। In this we have the two parameters, one is a and one is b, and the value of a is 1। Next we have the same function, a is equal to 1, then b, c is equal to 2। Then def f, a is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 2, and in the last option we have 4 parameters with the 3 values are having the values and last value is not having any value, last variable is not having any value। तो आपको पता है फंक्शन के डेफिनेशन में, दैट इज फंक्शन हेडर में, जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को पास करते हैं सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। एंड आउट ऑफ दिस द फंक्शन हेडर्स इज करेक्ट, हाउ वी कैन कम टू नो। हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के रूल्स में पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उस वेरिएबल से राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है दैट शुड ऑल्सो हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, देन ओनली वी कैन गिव वैल्यू टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो a हैज़ द वैल्यू 1, लेकिन a के राइट में b है, उसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो इस केस में क्या हमारा ये फंक्शन हेडर करेक्ट हो सकता है, नो। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास a हैज़ 1, b एंड देन c हैज़ 2, तो c की वैल्यू 2 है, इसके बाद b की वैल्यू जो है इट इज़ नॉट गिवन एंड देन a की वैल्यू दी हुई है। तो लेफ्ट साइड पे वैल्यू देने से पहले राइट साइड के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी भी वैल्यूज होनी चाहिए, तो b की नहीं है, दिस कैन ऑल्सो नॉट बी द करेक्ट फंक्शन हेडर। सी पार्ट पे आते हैं, इसमें हमारे पास तीनों वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू है, सो वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट फंक्शन हेडर। डी पार्ट को भी चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू है लेकिन डी की नहीं है, विच इज टू द राइट ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स, सो दैट इज वाई दिस फंक्शन हेडर कैन नॉट बी करेक्ट। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर पैरामीटर पासिंग टू फंक्शन। जब भी हम फंक्शंस को पैरामीटर्स पास करते हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है। फर्स्ट इज यू कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर, क्या आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं। सेकेंड इज यू कैन पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर, क्या आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं। थर्ड इज यू कैन कॉल अ फंक्शन विद पोजिशन एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, एक फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में आप पोजिशन और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दोनों का यूज कर सकते हैं। And the fourth option is positional argument must be before keyword argument in a function call, एक फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर आपकी पोजिशन आर्ग्यूमेंट कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से पहले होनी चाहिए। तो इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, सपोज हम एक फंक्शन ले लेते हैं सम नाम से। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया, वी हैव टेकन टू पैरामीटर्स a एंड b, डेफ सम a comma b, I say c is equal to a plus b and print the sum is c। इसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल किया विद द टू वैल्यूज दैट इज 4 एंड 5। अब आप क्लास यहाँ पे देखिए, जब हमने फंक्शन को कॉल किया विद द वैल्यू 4 एंड 5, so my 4 value will be passed to the variable a
and my 5 value will be passed to the variable b. तो ये 4 and 5 मेरी कैसी हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं. तो अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज कर दूं, दैट इज मैं इसको कह दूं 5 और मैं ये कह दूं 4, लेकिन मुझे चाहिए कि a की वैल्यू 4 ही रहे और b की वैल्यू 5 रहे. तो क्या हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं? नो. जो वैल्यू आप फर्स्ट पास करेंगे वो फर्स्ट वेरिएबल को ही जाएगी, जो वैल्यू आप सेकंड को पास करेंगे वो सेकंड वेरिएबल को ही जाएगी. तो इस केस में आपकी जो क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पास इन एनी ऑर्डर, दैट बिकम्स फॉल्स. अगर हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की बात करें तो मैं अगर यहाँ पे कह दूँ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, इस केस में a की वैल्यू 4 जाएगी और b की वैल्यू आपकी 5 जाएगी. ये हमारी कैसी आर्ग्यूमेंट्स हैं? दीज आर माई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. क्या हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं? क्या मैं ये कह सकती हूँ कि b इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू 4? यस, दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. हम वेरिएबल्स के नेम को यानी कि उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, और अगर हम वैल्यू सेम डलवाना चाहें या डिफरेंस डलवाना चाहें तो दैट डिपेंड्स ऑन अस. तो वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. यस, दिस कैन बी डन. इसके अलावा जो हमारी पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स होती हैं वो हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से पहले आती हैं. यहाँ मैंने लिखा 3 और मैंने कहा b इज इक्वल टू 6. तो इस केस में पोजीशनल आर्ग्यूमेंट है 3 और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है 6. तो पोजीशनल आर्ग्यूमेंट हमेशा आपकी कहाँ आएगी? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से पहले. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. इसके बाद अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं b इज इक्वल टू 6 कॉमा में 3, तो इसका मतलब है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट से b की वैल्यू तो 6 हो गई, लेकिन जो ये 3 वैल्यू है वो आपकी b को ही पास होगी, वो a को पास नहीं हो सकती. तो इसलिए हमारी जो पोजीशनल आर्ग्यूमेंट है वो हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से पहले ही आती है. और आपकी लास्ट स्टेटमेंट कहती है कि पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बी बिफोर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, दैट डन. एंड सी पार्ट इज यू कैन कॉल अ फंक्शन विद द पोजीशनल एंड द कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, दैट इज राइट. कि हम एक फंक्शन के अंदर पोजीशनल और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट दोनों को ले सकते हैं. सो दैट इज राइट. सो कौन सा ऑप्शन इनमें से हमारा रॉन्ग हुआ? दैट इज यू कैन पास पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर. दिस इज नॉट ट्रू when we are passing the parameter to the functions. Next is, which of the following function call can be used to invoke the below function definition? यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, दिस इज माई फंक्शन डेफिनेशन, और यू कैन से फंक्शन हेडर डेफ टेस्ट ABCD. टेस्ट इज द नेम ऑफ माई फंक्शन, डेफ इज द कीवर्ड और ABCD हमने यहाँ पे 4 पैरामीटर्स को पास किया. अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल कराना है तो मैं इनमें से कौन से ऑप्शन को यूज कर सकती हूँ? आई हैव टेस्ट 1, 2, 3, 4. It means 1 is the value of A, 2 is the value of B, 3 is the value of C and 4 is the value of D. अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो टेस्ट A is equal to 1, 2, 3, 4. हमने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जब पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि हम किसी भी एक वेरिएबल को एक से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते. सो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी यूज टू इन्वोक द फंक्शन, ऑल्दो A part can be used. Then we have the C part, test A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3, 4. तो इस केस में भी आपके पास क्या है? C की हम 2 वैल्यूज को पास कर रहे हैं जो कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे अलाउड नहीं होती. इसके बाद आप यहाँ पे ले रहे हैं टेस्ट A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? चारों वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज पास कर रहे हैं, दैट इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. सो दिस कैन बी डन. ओके, नाउ हियर दिस स्टेटमेंट इज देयर. अगर हम इसे फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते तो वहाँ पे भी हम इस तरह से एक से ज़्यादा वैल्यूज पास नहीं करते, और जब हम इसे फंक्शन कॉलिंग में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी आप इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू को पास नहीं कर सकते. सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी द ऑप्शन A एंड ऑप्शन नंबर B. दीज आर माई पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज आर माई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स. Next question is, which of the following function call will cause error while invoking the below function definition? Same question is there. ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी हैं जिसकी हेल्प से आपकी जो फंक्शन डेफिनेशन है उसमें एरर आएगा. तो अभी हमने डिस्कस किया कि A और D हमारे करेक्ट ऑप्शन है. एरर विल कम इन ऑप्शन नंबर B एंड ऑप्शन नंबर C, बिकॉज हेयर वी हैव गिवन मोर देन वन वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पे हमने C वेरिएबल के लिए 2 आर्ग्यूमेंट्स दी हुई हैं विच इज इनवैलिड इन पाइथन. आफ्टर दैट वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is a variable defined outside all the functions referred to as? सभी फंक्शन से बाहर
जिस भी वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं उसे हम कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल. And any variable which is defined inside a function. The next question says, what is a variable defined inside a function referred to as? किसी भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बना होता है वो होता है आपका लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल. Now let us see this practically. Here we have one question, that is this one. So in this case you can see कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पास करूँ 3 and 4 और यहाँ पे मैंने इसको किसी वेरिएबल p में स्टोर करा दिया एंड देन आई से प्रिंट p, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो p है दैट इज इन द मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, सो दिस इज माय ग्लोबल वेरिएबल. और ये जो मेरे a b दैट इज इन द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन एंड द c विच इज इन द बॉडी ऑफ द फंक्शन. a b एंड c मेरे कैसे वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं. और p कैसा है, इसे मैं पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ, दैट इज इन द होल पार्ट, एनीवेयर इन द प्रोग्राम और इन द फंक्शन ऑल्सो. इस p को मैं फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकती हूँ. सिमिलरली अगर आप कोई भी वेरिएबल ऐसा लेते हैं जो आप फंक्शन हेडर से भी ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो भी आपका कैसा माना जाता है, दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल. तो इस पूरे प्रोग्राम में हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स हुए x एंड p और हमारे लोकल वेरिएबल्स हुए a, b एंड c. अंडरस्टूड? आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what is a variable defined inside a function, that we have done. Next is question number 12. Carefully observe the given code and give the answer. Here we have a Python code, def function 1a. Function 1 is the name of the function. A is the name of my parameter. I say a is equal to a plus 1. Then a is equal to a into t, a into 2. This is my function body, 2 statements. और last में हमने क्या किया, function 1 को कॉल किया and यहाँ पे हमने argument पास की hello. अब आपको बताना है what will be the output of this one. The options are indentation error, cannot perform mathematical operation on strings, hello 2 और hello 2 join together. So यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमने फंक्शन बनाया, जितनी भी लाइंस हमारी फंक्शन की बॉडी की होती हैं दैट शुड हैव अ सेम इंडेंटेशन लेवल. लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं a इज इक्वल टू a प्लस 1 के बाद दिस नेक्स्ट स्टेटमेंट a इज इक्वल टू a इंटू 2, यहाँ पे थोड़ी सी इंडेंटेशन दी हुई है. So which is not required, this is an unexpected indent, so that is why it will show the indentation error in this case. और अगर यहाँ पे ये हमारी स्टेटमेंट यहीं पे होती a is equal to a into 2, तो उस केस में आपका कैसे आता, a की वैल्यू हमारी क्या जा रही है, that is hello. हमने कहा hello plus 1, 1 वैल्यू इज माई इंटीजर लेकिन मैंने इसको कोट्स में रखा हुआ है, तो ये मुझे क्या देगा, it will give me hello plus 1, so it will concatenate it, दैट इज हेलो के बाद आपका सिंपली 1 आ जाएगा. और अगर a इज इक्वल टू a इंटू 2 है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, हेलो हेलो, हेलो विल कम 2 टाइम्स. ओके, बट इन दिस केस द आंसर विल बी इंडेंटेशन एरर. ये चीज़ें तभी आपके प्रिंट होंगी जब यहाँ पे कोई प्रिंट स्टेटमेंट होगी, देन ओनली इट विल बी प्रिंटेड, राइट. आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस कोड. अब यहाँ पे हमारे पास एक कोड है, द नेम ऑफ द फंक्शन इज प्रिंट डबल एंड हियर वी हैव पास्ड वन पैरामीटर दैट इज x. फंक्शन की बॉडी में है प्रिंट 2 रेज टू द पावर x, दिस इज माय एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. फिर हमने फंक्शन को कॉल किया एंड वी हैव पास्ड द आर्गुमेंट एज 3, तो 3 वैल्यू किसके पास जाएगी, x के पास, एंड दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 2 रेज टू द पावर x एंड द वैल्यू ऑफ x इज 3. सो व्हाट विल बी माय आउटपुट इन दिस केस, 8, 6, 4 और 10. क्लियरली इट इज विजिबल, जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8. क्लियर क्लास. आफ्टर दैट वी हैव व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम इन अ पाइथन प्रोग्राम. आपके पाइथन के प्रोग्राम में अगर एक सेम वेरिएबल लोकल स्कोप में भी आ जाता है और ग्लोबल स्कोप में भी आ जाता है, दैट इज एक ही वेरिएबल सेम नेम से हमने डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे यूज किया हुआ है, तो उसे रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं LEGB. दैट इज सबसे पहले हम उसे चेक करते हैं लोकल स्कोप में, दैट इज इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन. फिर हम एनक्लोजिंग में, एनक्लोजिंग का मतलब होता है कि आप जिस फंक्शन में काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो दूसरे फंक्शन में है, आप फंक्शन 1 में काम कर रहे हैं, फंक्शन 1 फंक्शन 2 में है,
तो पहले सबसे पहले वो फंक्शन 1 में चेक करेगा, फिर फंक्शन 2 में चेक करेगा, फिर वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेक करेगा और फिर उसे बिल्ट इन नेम स्पेस में चेक करेगा। तो हमारा जो रूल होता है दैट इज LEGB। द ऑप्शंस आर रिटन इन द डिफरेंट ऑर्डर्स BGEL, GEBL, LBEG like this. So the correct answer for this one will be LEGB. To understand the concept of LEGB, you can check out that particular video first. That is, the link is provided in the description box. You can check there. After that, which of the given argument types can be skipped from a function call? एक फंक्शन कॉल में से हम कौन सी आर्ग्यूमेंट को स्किप कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स और डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो इस केस में आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को स्किप कर सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Here we have one question that is, हमने यहाँ पे लिया A and B। अब यहाँ पे अगर मैं फंक्शन को कॉल करूँ और मैंने यहाँ पे दे दिया b इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे आपके पास है सम फंक्शन कॉल्ड, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दिया सम इज 3। यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दिया। हमने यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स लिए 2 दैट इज A एंड B, लेकिन फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हमने एक ही आर्ग्यूमेंट को पास किया। तो विल इट शो मी एनी एरर और विल इट गिव मी द करेक्ट आउटपुट। हमने इस प्रोग्राम को रन किया। अब रन करके देखिए आपका आउटपुट आ रहा है द सम इज 9। तो इस केस में A की वैल्यू आपकी क्या जा रही है दैट इज 3 और B की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट वो क्या ले रहा है 6 बिकॉज दिस इज माय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो कौन सी आर्ग्यूमेंट को हम स्किप कर सकते हैं फंक्शन कॉलिंग में, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमें देनी होती हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कैन बी स्किप्ड फ्रॉम द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। With this, we have completed the MCQs of chapter number 3. I hope you have understood this, and still if you have any doubt in any of the question, you can ask me in the comment section. I'll meet you in my next video. Thank you.